Hello friends, today we will discuss about the anatomy of prostate gland. Now when you will see the prostate gland, इसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं and you should know about the important things. सबसे पहली चीज ये है कि इस ग्लैंड का नेचर क्या है. ग्लैंड का नेचर है फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंड. ठीक है, यानी ये बॉडी में एक ऐसी ग्लैंड है जो कि मसल फाइबर एंड फाइब्रस टिश्यू से मिलके बनी है और उस मसल फाइबर के बीच में ग्लैंडुलर पार्ट होता है. मतलब ये हुआ कि जब आप इस ग्लैंड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो आपको जो ग्लैंड पोर्शन है वो ग्लैंड पोर्शन तो दिखते ही दिखते हैं, बट इस ग्लैंडुलर स्ट्रोमा के चारों ओर यू विल हैव द स्मूथ मसल फाइबर. ठीक है, तो इसमें बहुत सारी स्मूथ मसल भी आपको मिलती हैं. ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि कई बार आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसमें यू हैव द फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा. आंसर इज प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड. नाउ दिस prostate gland lies below the neck of urinary bladder 2 centimeter behind the lower border of pubic symphysis. So when you will see the position, this is your bladder. Now it extends from the upper part and it will go to the lower side, and this upper part of the gland is continue with the neck of urinary bladder and its lower part will end at the level of your urogenital diaphragm. Clear? And its position is behind the lower border is important because here is the pubic symphysis. Now this is the pubic symphysis, then this is the upper border of pubic symphysis, this is the lower border of pubic symphysis, and this gland is near the lower part of this pubic symphysis. The shape is inverted cone, you can see that. What are the relations of prostate gland? Now when you will see the relations of prostate gland, it is having the base, it is having the apex, then you have the posterolateral, एंट्रोलैटरल एंड इंफीरोलैटरल सरफेस. देखिए ये क्या हुआ, बेस का हुआ, बेस हुआ ऊपर की तरफ. क्यों? क्योंकि ये है इन्वर्टेड कोन और जो बेस है दैट बेस इज एक्चुअली टुवर्ड्स द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड हियर इट इज परफोरेटेड बाय द यूरिथ्रा. सो दिस इज योर कोन. ठीक है, नाउ व्हेन यू विल सी द इन्वर्टेड कोन, सो दिस इज द बेस, सो बेस विल गो अबव एंड दिस इज द शेप ऑफ योर ग्लैंड. Now ये जो बेस है इस ग्लैंड का, दिस बेस इज अटैच्ड टू द नेक ऑफ योर यूरिनरी ब्लैडर एंड इस बेस पे एंटर हो रहा है प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा. नाउ दिस इज द लोअर पॉइंट इज नोन एज द अपेक्स, एंड व्हेन यू विल सी द अपेक्स, दिस अपेक्स विल रिलेटेड टू द यूरोजेनिटल डायफ्राम. क्लियर? एंड नियर द अपेक्स देयर इज ए urethra emerges. Clear? So the urogenital diaphragm is related with the apex and prostatic urethra emerges from the front of apex. This is again important thing that this urethra is not emerging near the tip but it is anterior to the apex. Clear? It is not emerging from the tip of this apex but exactly anterior to this tip. Then we have the posterior surface, anterior surface. Now when you will see this cone is having one anterior surface, one posterior surface and two side or lateral surfaces. Now when you will see the posterior surface remains separated from the rectum, and the area which separate the rectum from the prostate gland is known as fascia of Denon-Villers. What is that? Fascia of Denon-Villers. Now if you will see this diagram, in this diagram you can appreciate that this is the posterior part of prostate gland and this is your rectum. What is that? Rectum. Now between the rectum and the urinary bladder you have the fold of peritoneum. But this fold of peritoneum between the bladder and the rectum is not extending downward. Below that you have a fascia, एंड ये जो फेशिया है ये फेशिया कहलाता है फेशिया ऑफ डेनोन-विलर्स, और ये फेशिया ऑफ डेनोन-विलर्स इस प्रोस्टेट ग्लैंड को इस रेक्टम से सेपरेट कर रहा है. और ये फेशिया ऑफ डेनोन-विलर्स कैंसर सेल्स जो होती हैं, अगर प्रोस्टेट में कैंसर हो गया तो इन कैंसर सेल्स को रेक्टम में नहीं जाने देता है.
ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जब आप पोस्टीरियर रिलेशन देख रहे हैं, देन देयर इज ए वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट पोस्टीरियर साइड यू हैव द ejaculatory duct. So the ducts will pierce the posterior surface of prostate gland. ठीक है। सो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज द फेशिया ऑफ डेनॉन विलर्स, जो इसको रेक्टम की एंटीरियर वॉल से सेपरेट करता है। देन यू हैव द एंटीरियर सरफेस। द एंटीरियर सरफेस इज द surface which faces towards the pubic symphysis. So it is connected here with the puboprostatic ligament and it is related with the retropubic fat. Clear? Now side में क्या होता है? When you will see the sides of the prostate gland, it is related with the levator ani muscle and there is a very important relation, that is your prostatic venous plexus. So अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको क्या क्या चीज दिख रही है इस डायग्राम में, दैट यू हैव द प्रोस्टेट ग्लैंड विच इज हेयर, this is the base which is larger, this is the cone and this is the apex. Now apex is related with this urogenital diaphragm. Now this is your pubic symphysis and the gland is related with the lower part of the pubic symphysis, not with the upper part. Now there is a gap and that gap is present here. Now this area is known as retropubic space, which is filled with the fat, and this retropubic space is in anterior relation with the prostate gland. ठीक है। So ये सारी चीजें हैं जो आपको यहां पे याद रखनी है। Now here in this diagram you can see that this is the connection and ये जो connection है, ये क्या connection है? This is a connection between the pubis and prostate. This is known as puboprostatic ligament. ठीक है। और ये puboprostatic ligament कहाँ है? आगे की तरफ है। So it is a anterior connection of the prostate with posterior side of pubic bone. Now this is the area which is known as retropubic space of Ridgius, और ये जो space है, इस space में क्या भरा होता है? Fat. Clear? The next is the capsule. Now this is the very important question. यहां पे जब आप कैप्सूल देखोगे तो कैप्सूल कितने तरीके का है? कैप्सूल दो तरीके का है, ट्रू कैप्सूल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड फॉल्स कैप्सूल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड. True capsule of prostate gland is a strong layer of connective tissue of prostate itself at the periphery of the gland. ठीक है। जो आपका prostate gland है, इस prostate gland का अपना जो peripheral connective tissue है वो क्या कहला रहा है? This is your true capsule. Clear? Now this is a true capsule covered by one more layer, that is known as false capsule, and false capsule is the capsule which lies outside and there is a condensation of pelvic fascia. So there is a one more layer and this layer is known as false capsule. Now it is connected to the pubis by the puboprostatic ligament. So जो हमने puboprostatic ligament का connection देखा वो किसके साथ है? Actually false capsule के साथ होता है। ठीक है। बिकॉज लिगामेंट भी क्या है? पेल्विक फेशिया का कंडेंसेशन है, और ये फॉल्स कैप्सूल भी क्या है? पेल्विक फेशिया का कंडेंसेशन है। नाउ बिटवीन दीज टू कैप्सूल देयर इज ए प्रोस्टेटिक प्लक्सिस ऑफ वेन, यानी यहां पे ट्रू और फॉल्स कैप्सूल के बीच में क्या होता है? वीनस प्लक्सिस होता है। नाउ ये जो वीनस प्लक्सिस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेस पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्जरी ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड द सर्जरी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का बेस है ये वीनस प्लक्सिस। ठीक है। नाउ यू आर राइट नाउ डीलिंग विद द प्रोस्टेट ग्लैंड। हमें पता है प्रोस्टेट ग्लैंड में बीच में क्या है? यूरिथ्रा है। क्लियर? प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। अब इन केस ऑफ ए डिजीज दैट इज नोन एज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, डिजीज का नाम क्या है? बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जहां पे प्रोस्टेट एनलार्ज हो गई है। अब हमारे को क्या करना है? हमें प्रोस्टेट को वापस छोटा करना है। वी हैव टू डू द सर्जरी सो दैट वी कैन रिसेक्ट द ग्लैंड।
ठीक है, रिसेक्शन से क्या होगा कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो खत्म हो जाए और वापस से पेशेंट को जो यूरिनेशन है वो नॉर्मल हो जाए। तो हम चाहते हैं कि हम इस ग्लैंड का जो हाइपरप्लेजिया हो गया है, वो जो साइज बड़ा हो गया है, उसको हम निकाल दें। अगर आप बाहर से सर्जरी कर रहे हैं, इफ वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो जैसे ही आप ये फॉल्स कैप्सूल को कट करेंगे, देयर आर हाई चांसेस कि आप इस वीनस प्लक्सेस को रप्चर कर दो। सो द सेकेंड मेथड इज दैट वी पास द स्कोप थ्रू दिस यूरिथ्रा, दैट इज नोन एज रिसेक्टोस्कोप, और हम अंदर से इस टिश्यू को यहां से अंदर की तरफ से क्या करते हैं, हटाना शुरू कर देते हैं, डिसेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो धीरे 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 ये जो कंप्रेशन था ये खत्म हो जाता है एंड यू विल हैव द नॉर्मल यूरिनेशन, ठीक है। बट इन केस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये जो वीनस प्लक्सेस है जो आपने यहां बनाया है, ये थायराइड ग्लैंड में इस लेयर में नहीं होता, तो वो कहां होता है थायराइड ग्लैंड के केस में? वो जो वीनस प्लक्सेस है वो थायराइड ग्लैंड के केस में कहां होता है? अंदर होता है। किसके अंदर? ट्रू कैप्सूल के अंदर, ठीक है। सो इन केस ऑफ द थायराइड ग्लैंड you have the plexus of veins inside the true capsule. So thyroid gland की अगर सर्जरी करनी है तो हम अंदर वाले पार्ट को नहीं छेड़ सकते because there is a venous plexus. So इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहां बाहर वाला जो आपका कैप्सूल है, इस कैप्सूल को कट करके and we take out the gland. क्लियर? सो दोनों में यही फर्क है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके जो कैप्सूल है वहां पे ट्रू कैप्सूल के अंदर वीनस प्लक्सेस होता है, जबकि प्रोस्टेट के अंदर वीनस प्लक्सेस ट्रू और फॉल्स कैप्सूल के बीच में होता है। तो प्रोस्टेट का जो ये वीनस प्लक्सेस है जो कि ट्रू और फॉल्स के बीच में है, इस वजह से हम सर्जरी अंदर से कर रहे हैं। लेकिन थायराइड ग्लैंड के अंदर आपका जो प्लक्सेस है वो ट्रू कैप्सूल के अंदर है, तो हम इसको अंदर से ना छेड़ के सिर्फ फॉल्स कैप्सूल हटा के इसको एज ए ग्लैंड बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड दैट्स व्हाई दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स कैप्सूल एंड द प्लेसमेंट ऑफ वीनस प्लक्सेस। नाउ व्हेन यू विल सी the prostate gland, now here you can see that this is the prostate gland which extends from the neck of urinary bladder above and it is going to the your urogenital diaphragm downward. अब ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड में पीछे की तरफ से क्या आ रही है? इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है इट इज एंटरिंग फ्रॉम पोस्टीरियर साइड, और ये जो डक्ट्स हैं कितनी है? दो हैं, एक राइट है और एक लेफ्ट है, ठीक है। सो इजैकुलेटरी डक्ट पोस्टीरियरली किसमें एंटर होती है? आपके प्रोस्टेट में, और प्रोस्टेट से अंदर होती हुई ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरिथ्रा में ओपन हो जाती है। सो when we'll see the lobes of the prostate, now this is again the important thing to understand the lobes. So these lobes are divided by the urethra and two ejaculatory duct. So urethra और ejaculatory duct जो कि prostate के अंदर से पास हो रहे हैं, they will divide this into the 5 anatomical lobes. So what these 5 lobes? First is anterior lobe, posterior lobe, median lobe and right and left lateral lobe. ठीक है। एंटीरियर लोब कहां होता है? इट इज ए स्मॉल isthmus which connects the lateral lobes in front of urethra. ठीक है, कहां पे? यूरिथ्रा के आगे। तो अगर सपोज दिस इज द सेक्शन ऑफ योर यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द सेक्शन ऑफ योर प्रोस्टेट। नाउ ये जो प्रोस्टेट का सेक्शन है, इस प्रोस्टेट के सेक्शन में आपके पास सेंटर में क्या है? दिस इज योर यूरिथ्रा। नाउ ये जो यूरिथ्रा है, इस यूरिथ्रा के वजह से इस लोब, इसमें एक हो गया ये लैटरल लोब, ये इस साइड का लैटरल लोब, और ये जो दोनों लैटरल लोब हैं, अगर ये एंटीरियर एस्पेक्ट है तो दे आर कनेक्टेड हियर, एंड ये जो पार्ट है जो इन दोनों लोब्स को कनेक्ट कर रहा है, दिस इज नोन एज एंटीरियर लोब। सो एंटीरियर लोब इज नोन एज isthmus. And what is isthmus? Isthmus is nothing but it is a part of the gland which connects two sides of the lateral lobe in front of urethra. So this is your urethra. Clear? Now it contains little or no glandular tissue, mainly made up of fibromuscular stroma. So this is the question of your exam कि prostate gland के अंदर जब भी आप डिजीज की बात करोगे तो एंटीरियर पार्ट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड में डिजीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इस एंटीरियर पार्ट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड में जनरली ग्लैंडुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। देयर इज नो ग्लैंडुलर टिश्यू, इट जस्ट ए कनेक्टिंग चैनल विच कनेक्ट्स राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ योर prostate in front of urethra. Now posterior lobe. Posterior lobe connects the two lobes, lateral lobes behind the urethra.
So this is the area which is posterior to the urethra, and this part is here which connects the right and left lobe behind this urethra. So it is behind the urethra and it is behind the median lobe and ejaculatory duct. Most common site of carcinoma. This is the question of your exam कि सबसे कॉमन साइट क्या है? आंसर इज कैंसर के लिए पोस्टीरियर लोब होती है. दूसरा, एक तो आपने देखा कि ये पीछे है, बट पीछे भी कहां पे? मोर स्पेसिफिकली इट इज बिलो एंड बिहाइंड द मीडियन लोब एंड इजैकुलेटरी डक्ट. तो अभी मैंने आपको बताया कि इस डायग्राम में ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट. ठीक है, तो इस इजैकुलेटरी डक्ट के नीचे दिस इज योर पोस्टीरियर लोब. So posterior lobe lies below to what? Ejaculatory duct. So ejaculatory duct जिस लेवल पे ओपन हो रही है उसके नीचे वाला जो पार्ट है, किसके पीछे? यूरिथ्रा के पीछे, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के पीछे, इजैकुलेटरी डक्ट के नीचे क्या होता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ प्रोस्टेट. ठीक है. नाउ विल कम टू द मीडियन लोब. मीडियन लोब लाइज बिहाइंड, इट इज ऑल्सो बिहाइंड द यूरिथ्रा बट इन द अपर पार्ट. ये कहां था? इट इज इन द लोअर पार्ट. ठीक है, इट इज बिलो बट इट इज इन द अपर पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा एंड इन फ्रंट ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट. सो अगर आप वापस इस डायग्राम को देखें तो जो आपका ये वाला पोर्शन बचा, ये पोर्शन कहां है? दिस इज अगेन बिहाइंड द यूरिथ्रा बट अबव एंड इन फ्रंट ऑफ दिस इजैकुलेटरी डक्ट. सो ये वाला पोर्शन क्या कहलाया? मीडियन. ये क्या कहलाया? मीडियन लोब. ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है जिसका आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहां देख रहे हैं, इसके अंदर ये है आपका यूरिथ्रा, इसके पीछे ये है आपका डक्ट. कौन सा डक्ट? इजैकुलेटरी डक्ट. अब इस इजैकुलेटरी डक्ट से जो पाथवे बना, जिस पॉइंट पे इसने पोस्टीरियर पार्ट में पियर्स किया, उसके नीचे हो गया आपका पोस्टीरियर लोब, उसके ऊपर हो गया आपका मीडियन लोब. बट ये दोनों लोब कहां है? इस यूरिथ्रा के पीछे है. ठीक है. अब ये जो मीडियन लोब है, ये मीडियन लोब आप देखिए यहां पे, ये क्या है? आपका यूरिनरी ब्लैडर. इस यूरिनरी ब्लैडर में यहां पे इस तरह से प्रोट्रूजन करता है. ये जो प्रोट्रूजन है, दिस प्रोट्रूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर ये ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगी तो ये जो ग्लैंड एनलार्ज होगी तो ये प्रोट्रूजन बढ़ता जाएगा. ब्लैडर में अगर ये प्रोट्रूजन बढ़ता जाएगा तो ये जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, ये इसको छोटा कर देता है. ये इसके ऊपर एक वॉल्व या फ्लैप की तरह काम करने लग जाता है एंड पेशेंट को क्या होने लग जाता है? यूरिन के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाता है. ठीक है. सो दिस मीडियल लोब इज रिमेन प्रोजेक्टेड. नॉर्मल साइज में मामूली सा एक छोटा सा प्रोजेक्शन देखने को मिलता है एंड दिस इज द प्रोजेक्शन विच इज प्रेजेंट हियर इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर बिहाइंड दिस इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर. ठीक है. सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मीडियन लोब होता है, इट लाइज इन द अपर पार्ट पोस्टीरियर टू द यूरिथ्रा and in front of the ejaculatory duct, and it produces a elevation in the trigone of the bladder, and this elevation is known as uvula vasicae. So this is again the question of your exam. What is uvula vasicae? तो uvula vasicae हमें किस में दिखता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर दिखता है. बट uvula vasicae बना क्यों? What is the underlying cause? The underlying cause is projection of the median lobe of prostate. What is that? Median lobe of prostate. So it contains the much glandular tissue. So it is a common side of adenoma, or it is also known as benign prostatic hyperplasia. ठीक है. तो यहां पे दो चीजें हो गई कि जो पोस्टीरियर लोब होता है, यानी जो इजैकुलेटरी डक्ट के नीचे वाला लोब है, वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है? कैंसर. और जो हमारा मीडियन लोब है, यानी जो इजैकुलेटरी डक्ट के ऊपर वाला लोब है, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? एडिनोमा, या यू कैन से बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया. ठीक है. और ये जो मीडियन लोब है, ये मीडियन लोब जनरली एक प्रोट्रूजन शो करता है एंड दैट इज नोन एज यूवुला वसाइकी in the urinary bladder. Then you have the right and left lateral lobe. तो ये दोनों क्या है? These are the side lobes of both the side. These are known as right left lobe. It lies on each side of the urethra and they contains enough amount of glandular tissue, and sometimes they may also be the side of adenoma. But
ये जितने भी आपने लोब पढ़े, इसमें कौन सा लोब ऐसा है जिसमें ग्लैंड्यूलर टिश्यू नहीं है? आंसर इज योर एंटीरियर लोब. एंटीरियर लोब इज नॉट हैविंग, almost there is no glandular tissue. So please keep this question in your mind from this slide. ठीक है. Now we'll move to the structural zone. The gland consists of acini of varying shape. क्योंकि ये ग्लैंड है तो ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं? एसिनाई होते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, जब आप इसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हो, द साइज एम्बेडेड इन द फाइब्रोमैस्कुलर स्ट्रोमा, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी जो मैकनील्स है, देयर इज अ साइंटिस्ट इज नोन एज मैकनील. मैकनील डिवाइडेड द प्रोस्टेट इन द 3 कंसेंट्रिक जोन. कंसेंट्रिक जोन मींस रिंग शेप जोन, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक. सबसे बाहर एक रिंग है, उसके अंदर एक और रिंग है, और उसके अंदर एक और रिंग है. सो इन दैट कंसेंट्रिक पैटर्न, ये जो मैकनील है, इन्होंने स्ट्रक्चरल जोन्स, यानी ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी देयर आर 3 कंसेंट्रिक जोन. नाउ व्हाट आर द नेम? द नेम्स आर पेरिफेरल जोन, सेंट्रल जोन एंड ट्रांजिशन जोन. इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होता है? पेरिफेरल जोन. सो पेरिफेरल जोन इज हैविंग 70% ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू. एंड ऐसा जैसे नाम में छुपा हुआ है, पेरिफेरल जोन कहां होगा? पेरिफेरी में होगा. सो जब आप प्रोस्टेट ग्लैंड को देखते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो पेरिफेरी है, इस पेरिफेरी में हमें सबसे ज्यादा ग्लैंडुलर टिश्यू देखने को मिलता है. ठीक है. सो ये जो पेरिफेरल जोन है, इसमें कितना परसेंट टिश्यू है? 70%. एंड इट प्रेजेंट बिहाइंड एंड बिलो द इजैकुलेटरी डक्ट इन पोस्टीरियर लोब. अभी हमने देखा कि जो पोस्टीरियर लोब है वो इजैकुलेटरी डक्ट के पीछे है और इजैकुलेटरी डक्ट के नीचे है और यूरिथ्रा के भी पीछे है. सो दिस लोब, सो अगर आप यहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड ड्रॉ करेंगे, नाउ व्हेन यू विल सी दिस प्रोस्टेट ग्लैंड, इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ये आपका यूरिथ्रा है और ये पीछे से इजैकुलेटरी डक्ट आ रहा है. नाउ दिस पोस्टीरियर लोब which is here is having the maximum part of peripheral zone. अब इसके अंदर क्या है? इस पेरिफेरल जोन की अगर हम यहां पे लोकेशन चेक कर रहे हैं तो ये जो पेरिफेरल है, इट डज नॉट रीच अप टू द बेस, यानी ये अपर पार्ट में नहीं होता है. बट ऑब्वियसली बेस कहां है? ये है बेस. बेस कहां है? नियर द यूरिनरी ब्लैडर. सो दिस पेरिफेरल जोन इज नॉट अप्रोचिंग द बेस बट इट इज नियर द अपेक्स. It extends downwards to form the lower part of the gland and it is the exclusive zone of carcinoma. जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो posterior lobe है, जिसको अब हम यहां पे नाम दे रहे हैं peripheral zone, is the most common site of cancer. Why? Because it is having maximum number of glandular tissue and these glands are actually the site of cancer cells. ठीक है. तो यहां पे एक चीज कि जो मैकनील थे, उन्होंने इस प्रोस्टेट ग्लैंड को लोब्स में डिवाइड करने की बजाय उनको हिस्टोलॉजिकली 3 कंसेंट्रिक जोन्स में डिवाइड किया. अब हम दोनों को कोरिलेट कर रहे हैं, तो जो कंसेंट्रिक जोन, पेरिफेरल कंसेंट्रिक जोन जो मैकनील ने बोला, वो एक्चुअली लोब्स के हिसाब से कहां मिलता है? पोस्टीरियर लोब में मिलता है. और पोस्टीरियर लोब की लोकेशन क्या है? इट इज बिलो योर इजैकुलेटरी डक्ट, बिहाइंड द यूरिथ्रा. और कंसेंट्रिक जोन के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट पेरिफेरल जोन है, उसकी लोकेशन भी क्या है? बिहाइंड द यूरिथ्रा, बिलो द इजैकुलेटरी डक्ट. सो दिस इज द कॉमन टर्मिनोलॉजी. सो दिस इज द पेरिफेरल जोन और इट इज इन द पोस्टीरियर लोब एंड दिस एक्चुअली कंटेन्स 70% ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू एंड दिस इज द साइट वेयर यू हैव मैक्सिमम कैंसर्स ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड. नाउ विल मूव टू द सेंट्रल जोन. द रिमेनिंग, after that you have the 30%. Out of that, the 25% of the glandular tissue is in the central zone and it lies posterior to the urethra. It is again posterior to the urethra above the ejaculatory duct, means in this area we are talking about, and it is a wedge shaped space. So it is a wedge shaped space and it forms the base of the gland. So it is near the base. Clear? It is near the base of the gland and its apex is at the verumontanum. So what is verumontanum? We will see that this point is known as verumontanum in the posterior wall of the urethra. ठीक है. तो अगर आप यहां पे इस ग्लैंड को जब देखेंगे तो इस ग्लैंड में हमने क्या पाया? इस ग्लैंड में ये पाया कि जो ये ग्लैंड है,
इस ग्लैंड के अंदर जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है, इस प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा की ओपनिंग अपेक्स के आगे होती है और पीछे इसके अंदर क्या आती है, इजैकुलेटरी डक्ट आती है। अब इसका जो ये वाला पोर्शन है जहां ये खुल रहा है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में, ये एक डायलेटेड एरिया है, दिस इज नोन एज वेरुमोंटेनम। अब यहां पे ये एक वेज शेप एरिया है, दिस वेज शेप एरिया इज नोन एज सेंट्रल जोन, दिस वेज शेप एरिया इज नोन एज सेंट्रल जोन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसका अपेक्स किधर की तरफ है, नियर द ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, जिसको दूसरा नाम देते हैं वेरुमोंटेनम। क्लियर? सो इट सराउंड्स द इजैकुलेटरी डक्ट, यानी ये एरिया इस इजैकुलेटरी डक्ट के चारों ओर भी है। अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये कौन से वाले पार्ट को पियर्स करके जा रही है, इस सेंट्रल पार्ट को या इस पेरिफेरल पार्ट को, तो आंसर क्या है कि इस इजैकुलेटरी डक्ट की लोअर बॉर्डर तक हम इस पूरे एरिया को क्या नाम देंगे, योर सेंट्रल जोन। सो पेरिफेरल जोन स्टार्ट्स बिलो एंड आफ्टर द लोअर बॉर्डर ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर? नाउ विल हैव द ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन होता है यूरिथ्रा के चारों ओर, इट इज पेरीयूरिथ्रल। सो द ट्रांजिशन जोन लाइज अराउंड द upper part of prostatic urethra. Upper part means that ये जो एरिया इसके चारों ओर है, इस पार्ट में आपको ट्रांजिशन जोन मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट। सो कैंसर आर मोर कॉमन इन दिस पेरिफेरल जोन। ठीक है, कैंसर कहां पे ज्यादा होते हैं, पेरिफेरल जोन में ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास दो तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया प्रोस्टेट का, एक क्लासिफिकेशन हो गया लोब्स का, दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया स्ट्रक्चरल जोन का। सो लोब्स हमने कितने पढ़े, 5। कौन कौन से लोब पढ़े आपने, मीडियन लोब दैट इज अबव दिस ejaculatory duct, posterior lobe below the ejaculatory duct, anterior lobe anterior to the urethra, एंड दो जो साइड के हमने लोब्स पढ़े। लेकिन मैकनील ने इन्हीं लोब्स को लोब ना कह के क्या बोला, कंसेंट्रिक जोन, और उसने किस तरह से डिवाइड किया, पेरिफेरल जोन, सेंट्रल जोन एंड ट्रांजिशनल जोन। ठीक है, अब ये जो ट्रांजिशनल जोन है ये वाला जो कि पोस्टीरियरली है and it is periurethral, this part is the most common site of benign prostatic hyperplasia, क्योंकि ये और जो benign prostatic hyperplasia इस ट्रांजिशनल जोन से होगा तो ये धीरे धीरे ब्लैडर में ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करेगा बल्जिंग को। ठीक है, नाउ विल हैव द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। देखिए प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा क्या है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा वो पार्ट है जो कि इस प्रोस्टेट ग्लैंड से पास हो रहा है। ये जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है, this prostatic urethra is the part of male urethra which is passing through the gland, and the length of this is somewhere around 2.5 to 3 centimeters, and this prostatic urethra is the dilated part of your male urethra। ठीक है, so यहां पे अगर आप देखोगे तो what are the features of the prostatic urethra, ये बात आपसे कई बार पूछी जाती है। सो पहला है यूरिथ्रल क्रेस्ट। सो सबसे पहले इन फीचर्स के नाम क्या है, पहला फीचर है यूरिथ्रल क्रेस्ट, दूसरा फीचर है कॉलिक्यूलस सेमिनेलिस और वेरुमोंटेनम, दूसरा फीचर है कॉलिक्यूलस सेमिनेलिस और वेरुमोंटेनम, तीसरा फीचर है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, देन द फोर्थ इज यू हैव द प्रोस्टेटिक साइनस। ठीक है, सो जब आप प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा देखोगे तो उसमें ये जो फीचर्स हैं ये मिलेंगे कहां, ये मिलेंगे पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरिथ्रा पे, पोस्टीरियर वॉल ऑफ प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा पे, एंटीरियर वॉल पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोस्टेट को लॉन्गिट्यूडनली कट करना है अलोंग द यूरिथ्रा। ठीक है, और उसका एंटीरियर पार्ट आपने हटा दिया और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको जब आप देखेंगे तो आपको ये फीचर्स नजर आएंगे। अब यूरिथ्रल क्रेस्ट क्या है, क्रेस्ट नाम में ही छुपा हुआ है, क्रेस्ट इज समथिंग विच इज एलिवेटेड, कोई भी चीज जो मिड लाइन से ऊपर उठ जाती है और वर्टिकल रिज की फॉर्म में होती है, दैट इज नोन एज क्रेस्ट। सो यूरिथ्रल क्रेस्ट इज ए मिड लाइन रिज, इट प्रोजेक्ट इनटू द ल्यूमन ऑफ योर प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल। कौन सी वॉल, पोस्टीरियर वॉल। सो जो पोस्टीरियर वॉल होती है उस पोस्टीरियर वॉल से आपको वर्टिकल एक एलिवेशन नजर आता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा इज नोन एज क्रेस्ट। इस क्रेस्ट का जो सेंटर पोर्शन है, ये जो क्रेस्ट है, सपोज ये क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट का जो सेंटर पोर्शन है डायलेट हो गया, और डायलेट होने वाला इस सेंटर पोर्शन को हमने नाम दिया कॉलिक्यूलस सेमिनेलिस और वेरुमोंटेनम। That is actually the urethral crest widen in the middle portion. ठीक है,
and it show a eminence, and this area is known as verumontanum. Now then you have the prostatic utricle. Now prostatic utricle एक blind pouch होता है, cul-de-sac या recess होता है, and it represent the fused end of your paramesonephric ducts or Mullerian ducts. ठीक है, सो उसका जो मेल रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज नोन एज प्रोस्टेटिक यूट्रिकल. सो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स जो होती हैं दे विल जॉइन ईच अदर एंड फॉर्म ए cul-de-sac or a blind pouch. In the male is known as prostatic utricle. The prostatic utricle open on the middle of the verumontanum. So ये जो verumontanum है इस पे ये जो utricle बना ये ओपन हो जाता है. ठीक है, so verumontanum या colliculus seminalis पे क्या ओपन होता है? आंसर इज प्रोस्टेटिक यूट्रिकल. और इस प्रोस्टेटिक यूट्रिकल के साइड में नीचे दोनों तरफ क्या ओपन हो जाती हैं? इजैकुलेटरी डक्ट. क्लियर? नाउ व्हाट इज प्रोस्टेटिक साइनस? द एरिया विच इज ऑन द साइड ऑफ दिस क्रेस्ट. इस क्रेस्ट के दोनों साइड में जो एरिया बना दैट इज नोन एज प्रोस्टेटिक साइनस, विच इज अ डिप्रेशन ऑन बोथ द साइड ऑफ द क्रेस्ट, and this is known as prostatic sinus. So if we'll see this diagram, now what is this? This is again the longitudinal section of the prostate gland through the prostatic urethra. इसके अंदर आपको ये जो midline elevation दिख रहा है, ये midline elevation क्या है? This midline elevation is known as urethral crest. ये सबसे पहली चीज क्या है? urethral crest. इस यूरिथ्रल क्रेस्ट का ये वाला जो मिड लाइन पोर्शन है, मिडिल पोर्शन है, ये डायलेट हो गया है. डायलेट होने के बाद इसको हमने नाम दे दिया सेमाइनल कॉलिकुलस और वेरुमोंटेनम. अब ये जो वेरुमोंटेनम है इसका जो टिप है, इस टिप पे सेंटर में आपको एक बड़ा सा ओपनिंग नजर आ रहा है. ये ओपनिंग किसका हो गया? प्रोस्टेटिक यूट्रिकल का. इस ओपनिंग के साइड में नीचे की तरफ दो और ओपनिंग नजर आ रही हैं. ये क्या हो गई? इजैकुलेटरी डक्ट. किसकी ओपनिंग हो गई? इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग. तो आपसे पूछा जाएगा कि सेंटर में क्या चीज ओपन होती है? आंसर इज प्रोस्टेटिक यूट्रिकल. उसके नीचे किस चीज की ओपनिंग है? आंसर इज इजैकुलेटरी डक्ट की. अब ये जो है स्ट्रक्चर, इसको देखो आप, तो ये बीच में एलिवेटेड एरिया है और दोनों साइड ये डिप्रेस्ड एरिया है. ये जो डिप्रेस्ड गटर लाइक एरिया क्रिएट हुआ इस एलिवेशन के, तो ये जो साइड में डिप्रेशन क्रिएट हुआ ये क्या कहलाए? दिस इज योर प्रोस्टेटिक साइनस. ये क्या है? योर डिप्रेस्ड एरिया. इन डिप्रेस्ड एरिया में यहां पे मल्टीपल ओपनिंग्स हैं. ये ओपनिंग्स हैं इन प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स की. ये किसकी ओपनिंग्स हैं? प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स की, जो आप यहां देख रहे हैं. सो दिस इज द ग्लैंडुलर पोर्शन ऑफ द प्रोस्टेट, और उसकी जो ग्लैंड है ये इस यूरिथ्रल क्रेस्ट के दोनों साइड जो डिप्रेशन है, इन डिप्रेशन में आके ओपन हो जाती है. ठीक है, अब यहां पे एक और चीज आप देख रहे हो कि जो प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा होता है, मेल यूरिथ्रा, उसके ऊपर एक इंस्फिंक्टर होता है और उसके नीचे भी एक इंस्फिंक्टर होता है. नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो ऊपर वाला इंस्फिंक्टर है दिस इज नोन एज इंटरनल यूरिथ्रल इंस्फिंक्टर, एंड दिस इंटरनल यूरिथ्रल इंस्फिंक्टर इज ए इनवॉलेंट्री इंस्फिंक्टर, व्हाइल दिस इंस्फिंक्टर जो कि नीचे है दिस इज नोन एज एक्सटर्नल यूरिथ्रल इंस्फिंक्टर, एंड ये वॉलेंट्री होता है. यानी ये बनता है स्मूथ मसल से, और ये स्मूथ मसल होती है एक्चुअली मसल ऑफ योर ब्लैडर वॉल, और ये बनता है मसल ऑफ योर यूरोजेनाइटल डायफ्राम से. तो ये क्या है? इनवॉलेंट्री इंस्फिंक्टर है. ये क्या है? वॉलेंट्री इंस्फिंक्टर है. तो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा जो है इसके ऊपर होता है इनवॉलेंट्री इंस्फिंक्टर और इसके नीचे होता है वॉलेंट्री इंस्फिंक्टर. ठीक है. नाउ what is the blood supply of prostate gland? So prostate gland mainly supply होती है inferior vesical artery से, और inferior vesical artery branch है internal iliac artery की. कुछ branches, कुछ blood supply इसमें middle rectal artery और pudendal artery से भी आती है, but major supply कहां से आती है? inferior vesicle से. Now venous drainage is again important. The veins run into a plexus between the true and false capsule, जो अभी हमने देखा कि प्रोस्टेट का वीनस प्लक्सिस कहां होता है? फॉल्स कैप्सूल के अंदर और ट्रू कैप्सूल के बाहर होता है. एंड दिस प्रोस्टेटिक वीनस प्लक्सिस एंड इट्स दिस जॉइन विद द वसाइको प्रोस्टेटिक प्लक्सिस सिचुएटेड एट द ग्रूव बिटवीन द ब्लैडर एंड प्रोस्टेट. तो ये जो आपका ब्लैडर है, इस ब्लैडर के नीचे ये यूरिथ्रा है, इस यूरिथ्रा के चारों ओर दिस इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये जो आपका ग्रूव है दिस ग्रूव इज नोन एज वसाइको प्रोस्टेटिक ग्रूव. इस वसाइको प्रोस्टेटिक ग्रूव में ये जो प्रोस्टेटिक प्लक्सिस है, ये प्लक्सिस इसका जो ब्लैडर का प्लक्सिस है उसके साथ आके फ्यूज हो जाता है,
और इसकी वजह से बनता है वसाइकोप्रोस्टेटिक प्लक्सिस। कौन सा प्लक्सिस? वसाइकोप्रोस्टेटिक प्लक्सिस। सो प्रोस्टेटिक प्लक्सिस और ब्लैडर का प्लक्सिस दोनों ज्वाइन हो गए। दिस प्लक्सिस रिसीव द डीप डॉर्सल वेन ऑफ द पेनिस, और आगे से जो पिनाइल पोर्शन है वहां से आ रही है डीप डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस। सो ऑल द थ्री विल ज्वाइन एंड अल्टीमेटली दे विल ड्रेन पोस्टीरियरली इनटू द इंटरनल इलियक वेन, और यहां से अल्टीमेटली ये वीनस प्लक्सिस किधर की तरफ चले जाते हैं? पोस्ट्रोलैटरली, और पोस्ट्रोलैटरली दे विल ओपन इनटू द इंटरनल इलियक वेन। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो क्या सवाल है कि प्रोस्टेटिक कैंसर्स जो होते हैं, इनमें जो कैंसर सेल्स हैं, ये कैंसर सेल इन ब्लड वेसल्स के थ्रू, कौन सी ब्लड वेसल्स के थ्रू? ये जो कैंसर सेल्स हैं ये इस वीनस प्लक्सिस, जिसको हम नाम दे रहे हैं प्रोस्टेटिक वीनस प्लक्सिस, इसके थ्रू बाहर निकल जाती हैं एंड दे विल स्प्रेड। अब ये स्प्रेड कहां हो जाती हैं? दे विल स्प्रेड इनटू द वर्टिब्रल कॉलम एंड सैक्रम। सो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ द कैंसर ऑफ प्रोस्टेट इन्वॉल्व द वर्टिब्रल कॉलम। अब ये वर्टिब्रल कॉलम को इन्वॉल्व कैसे करते हैं? उसके लिए आपको कनेक्शन चाहिए। किसका कनेक्शन? इस वीनस प्लक्सिस का कनेक्शन वर्टिब्रल कॉलम के वीनस प्लक्सिस से। सो वो कनेक्शन कैसे हुआ कि जो इंटरनल इलियक वेन होती हैं दे कम्युनिकेट्स फ्रीली विद द वेन्स ड्रेनिंग द वर्टिब्रल कॉलम, एंड इट एक्सप्लेन व्हाई द मेटास्टेसिस ऑफ कार्सिनोमा सैक्रम और अदर वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में पहुंच जाता है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम एंड यू हैव टू एक्सप्लेन, बिकॉज जनरली हमारे दिमाग में होता है कि कैंसर का मेटास्टेसिस लिम्फेटिक रूट के थ्रू हो रहा है, बट यहां पे ये जो कैंसर है किसका? प्रोस्टेट का, ये बोनी मेटास्टेसिस जो शो कर रहा है, पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम की, ये जो स्प्रेड है कैंसर सेल्स का, ये लिम्फेटिक्स के थ्रू ना होके किसके थ्रू हो रहा है? वीनस रूट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। नाउ लिम्फेटिक ड्रेनेज, प्रोस्टेट्स जो होते हैं दे जनरली ड्रेन इनटू द इंटरनल इलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। नाउ विल हैव द नर्व सप्लाई। देखिए यहां पे दोनों तरीके की नर्व सप्लाई की हम बात करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक एज वेल एज वी हैव द सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। नाउ पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई जो होती है इट कम्स फ्रॉम द पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व, और जो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है द मसल फाइबर्स ऑफ द स्ट्रोमा व्हिच कॉन्ट्रैक्ट्स। सिंपैथेटिक सप्लाई किसके लिए जरूरी है? सिंपैथेटिक सप्लाई जरूरी है इजैकुलेशन के लिए, और इजैकुलेशन जब होगा तो ये जो सिंपैथेटिक सप्लाई है ये आपके जो प्रोस्टेट की मसल है उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? जो सीक्रीशंस हैं दे विल कम आउट इन द यूरिथ्रा इन द फॉर्म ऑफ सीमन, और उस सीमन के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। देयर इज एम्प्टिंग ऑफ द ग्लैंड ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, इट इज अंडर द सिंपैथेटिक कंट्रोल। ठीक है, तो सिंपैथेटिक रोल प्रोस्टेट ग्लैंड में ज्यादा जरूरी है, बिकॉज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्शन से एम्प्टिंग ऑफ ग्लैंड होती है, सो दैट द इजैकुलेशन इज पॉसिबल। Now, what is the surgical approach? Now, this is the very important thing which you have to understand कि हम दो तरीके की सर्जिकल अप्रोच करेंगे। देखिए ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, इस यूरिनरी ब्लैडर की नेक पे क्या है? आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, और ये किसके पीछे है? दिस इज योर व्हाट? प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड की जो डिजीज है उसको हम अगर सर्जिकली ट्रीट करना चाहते हैं तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम इस यूरिथ्रा के थ्रू इसके अंदर चले जाएं, या हम इसको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अप्रोच करें। ठीक है, थ्रू दिस रेट्रोप्यूबिक स्पेस। ठीक है, सो अगर आप इसको यूरिथ्रा के थ्रू जा रहे हो तो ये क्या कहलाया? आपका ट्रांस यूरिथ्रल अप्रोच। ट्रांस यूरिथ्रल मीन्स थ्रू द यूरिथ्रा। So most of the operation of benign prostatic hyperplasia, I told you there is a disease is known as BPH, and BPH हमने देखा सबसे ज्यादा किस लोब से होती है? median lobe of prostate से होती है। So if there is a BPH, they are carried out by TURP. Now this is the most common question. What is TURP? TURP means transurethral. ट्रांसयूरिथ्रल मतलब यूरिथ्रा के थ्रू हम क्या करने वाले हैं? रिसेक्शन। सो ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। सो दिस इज नोन एज TURP, transurethral resection of prostate. So transurethral resection of prostate is done with the transurethral route with the resectoscope.
तो जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप रिसेक्शन करोगे, यानी यहां से इस ग्लैंड को डिसेक्ट करके छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में हम बाहर निकालेंगे, तो वो जो रिसेक्शन या डिसेक्शन का जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज नोन एज रिसेक्टोस्कोप। द एरिया ऑफ रिसेक्शन बीइंग रेस्ट्रिक्टेड टू अबव द वेरुमोंटेनम। यहां पे जो आपने देखा कि ये क्या है, दिस इज योर इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट कहां ओपन होती है, इस एरिया में। ये एरिया क्या कहलाता है, वेरुमोंटेनम। तो हम जो रिसेक्शन करेंगे वो इस वेरुमोंटेनम के ऊपर इस एरिया में करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, उसका कारण है, उसके दो कारण है। पहला रीजन कि जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है वो वेरुमोंटेनम के ऊपर ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, बिकॉज इट अराइजेस फ्रॉम द मीडियल लोब, और मीडियल लोब कहां होता है, इजैकुलेटरी डक्ट के ऊपर होता है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिसेक्ट इन दिस एरिया, नॉट इन दिस एरिया। ठीक है, पहला रीजन किसका, पहला रीजन कि व्हाई वी आर डूइंग द रिसेक्शन अबव द वेरुमोंटेनम। द फर्स्ट रीजन इज बिकॉज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बीपीएच इज the area which is above the ejaculatory duct is known as medial lobe. और दूसरा, we want to prevent injury of external urethral sphincter, because external sphincter अगर डैमेज हो गया then there is a problem in the holding of urine. So the external urethral sphincter जो है which is distal to it, we should not damage. ठीक है, तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि when you are doing the transurethral dissection of the prostate, why we dissect above the verumontanum. So इसके दो रीजन आपको याद रखने हैं। एक, because this is the side of the origin of hyperplasic neoplasia, hyperplasic adenomas, and second thing is we don't want to damage your external urethral sphincter. Second thing is an approach through the abdominal suprapubic incision. So ये जो आपका प्यूबिस है, इसके ऊपर अगर हम यहां से इंसिजन लगा के अंदर जा रहे हैं, then it is known as abdominal approach into the retropubic space. So आपने क्या किया, एब्डोमेन खोला, एब्डोमेन खोल के सुप्राप्यूबिकली retropubic space में आ गए। Into the retropubic space we give exposure for a total removal of the organ. ये अप्रोच हम तभी करेंगे जब हमें पूरा की पूरा ऑर्गन निकालना है, ऑफ द ऑर्गन ऑफ, बट ये किस केस में करते हैं, इन केस ऑफ द कैंसर ऑफ प्रोस्टेट, विच कैन ऑल्सो बी अचीव्ड लैप्रोस्कोपिकली। ठीक है, और थ्रू द पेरिनियल अप्रोच। अब ये अगर आपने कर दिया कि आपने इसको पूरा निकाल दिया ऑर्गन को, तो अब अगले स्टेप क्या है कि द ब्लैडर नेक इज एनास्टोमोस विद द मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। तो ये जो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा होगा जो कि पेल्विक डायफ्राम में, इसको इस ब्लैडर नेक के साथ फिर सूचर कर दिया जाता है। ठीक है, सो दैट द यूरिन कैन पास आउट फ्रॉम द यूरिथ्रा। क्लियर। सो जब भी हम सर्जिकल अप्रोच की बात करेंगे, हम दो तरीके की सर्जिकल अप्रोच कर रहे हैं, या तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से या यूरिथ्रा के थ्रू। अगर हम यूरिथ्रा के थ्रू सर्जरीज कर रहे हैं तो दे आर मोस्टली डन इन केस ऑफ योर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। और अगर हम एब्डोमिनल सर्जरीज कर रहे हैं तो एब्डोमिनल सर्जरीज मोस्टली हम करते हैं इन केस ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ योर prostate gland. Clear? So at the end of this class of the prostate gland, you should able to first identify the lobes of the prostate gland, how they are divided, then how they are divided on the basis of histology, and the another and very important thing is that which area of prostate gland give origin to the BPH and which area is the site of carcinoma of prostate gland. So this is all for today's class. Thank you.